Yeah, today is the 2nd of July. It's a Friday, and most of the world, the Friday is a weekend. They celebrate as a last working day of the organization, and then everybody is cheerful to enjoy the Saturday and Sunday. But somewhere, as per requirement of the work, we have to enjoy our work Saturday and Sunday. So enjoyment is everywhere, either in our own work or either on the sea beach or either in the kitchen at home. So we can enjoy where are we are. Here, today I'm talking about the things which are very much correlated as a person, as a called a warrior, a soldier, a person who is a commercial warrior. So there is a two type of warrior and commercial warrior. Both are risk taker. Both have their features. One warrior save the nation, and second warrior feed the nation. So both are interrelated, correlated with each other. And here, it's my privilege to introduce a person who's an army man, who is an author, who is an academic architect, and who is into the agribusiness. If you noted down my all points, all start with the A, and rest of A will be justified by the speaker. The speaker is alumnus of prestigious officer training academy Chennai, and he worked with Indian Army 21 year in the regiment of artillery, and also is a postgraduate in science from Pune University, and got a opportunity to go USA, United States of America, for an army-sponsored training capsule on the DARS. And I'm happy to say you he's a executive MBA from MDI Gurgaon, then work in the multinational company Rolta India. And moreover, he loves English literature, so he did his graduation from Crodimal College, New Delhi. It's in the North Campus. And as I told, he's an author. Then he wrote a book, Prisoner of War and Babysitter. Some of men's boys, you can be a babysitter. So listen very carefully. He make some short film titled Drishtikon. Might be you heard about this telecast on national television. And Keep Writing is titled Babysitter. I already told you. And one more thing, which is a very important, which I told you so many times. You listen the videos of Jack Ma, you listen video of Steve Wag, and some more Warren Buffett, Ratan Tata. I told you to become an entrepreneur, you must read the biography of these commercial warriors. And here, a person who is with me, he is continue doing the leadership series on APJ Kalam, Dr. Kiran Bedi, Dhirubhai Ambani, Steve Jobs, and Ramanujan. So he gave the every kind of flavor to the youth of India. If I talk about then Colonel Manish Sharma, the all things I shared with you, the person who is in front of us for screen is a Lieutenant Colonel Manish Sharma. At present, he is serving as a general manager corporate affair with Dayal Group of Industry, which have a 40-year-old industry of the Meerut and committed to the agribusiness. I told you the person is from Army, author, academic architect, and agribusiness. So he's a design engineer and business development activities in Dayal Infosystem, which is fast-growing IT venture. So the fellow is from IT industry. As you all, some of the students from BTech, CS, IT, MBA, MCA. So you all listen very carefully how, see, our life is a battlefield and we have to fight each and every moment. Each and every moment we have to fight, but be cool and calm. Ultimate aim is we have to be a progressive. So here we are with Lieutenant Colonel Manish Sharma. And moreover, one of the person who is with us, you can see there's a MMA
one screen and able to read the name on the screen. Gaurav Jain, President, Meerut Management Association and Managing Director of KR Industry. And he is qualified graduate and postgraduate. He worked with the industry, special in the IT industry. And moreover, what I'm going to tell you, he is a young entrepreneur, or can say innovative entrepreneur. What I told you in my first unit, second unit, they should have a seed of CID. Every entrepreneur must have a seed of CID, creative, innovative, and dedicated. So Gaurav Jain is a live example with us. Once he reveal his picture with you, then you can see he is a young like you. He is an accountant, he is a design engineer, he is a developer, and you can see he is a new product innovator. He is a marketing manager. So you can see now. This young champion is with us. Is a president of Meerut Management Association. So multitasking is a live example. He will share his personal experience, how the industry can be run. So here, as per our topic of entrepreneur, we have a person in a yellow shirt. He is an entrepreneur. I'm in the golden tie, just a moderator of the program. And we have a Lieutenant Colonel Manish Sharma. So Colonel Saab, just we start the opening remark from you, 15 minutes, then 5-10 minute experience will share with the Gauravji, then again your remark, then Gauravji, then again your remark. So we will make it a 15-minute bracket. So some of the students want to come on the panel. I am very happy to promote you as a panelist student. Very happy. So just raise your hand, then you will come on the panel. So you feel proud to sit with all of us. Great. So with the voice of Jai Hind, I wish to invite Lieutenant Colonel Manish Sharma. Welcome. Thank you. Thank you so much, Dr. Saab. And thank you, Gaurav, for being present on the panel with us. It's a matter of delight for me that, and I consider it a privilege that I am addressing the students as well as professors of one of the top institutes of Meerut. Not only Meerut, but NCR. It's MIT has got that kind of halo effect around it. And it has got that kind of, it has enjoyed that kind of prestige always. Sir, we are at 21st century management education. If you Google it, we are number 1 in the world now. Exactly. So it's a privilege that I have got today. And the topic that we are going to touch upon today is basically about warriors. जिस तरह का देखिए इस वक्त हालात चल रहे हैं, आज हम सुबह उठकर व्हाट्सएप को देखते हैं और जिस तरह की खबरें हमें देखने को मिलती हैं और जिस तरह से एक ह्यूमन लाइफ का लॉस हुआ है हमारे आसपास और जो एक तरह का साइकोलॉजिकल फियर इस वक्त सोसाइटी कम्युनिटी फेस कर रही है, हमें ज़रूरत है ये समझने की कि हम इसके साथ कैसे डील करें. क्योंकि एक जो एंटरप्रेन्योर है उसकी सबसे बड़ी खासियत मेरा ख्याल ये होती है कि अच्छे सर्कमस्टांसिस में तो सभी काम कर लेते हैं, लेकिन वो एडवर्स सर्कमस्टांसिस में भी काम कर सकता है. तो एक अगर आप सोल्जर की बात करें, मैंने 21 साल इंडियन आर्मी में गुजारे हैं. मैंने हमेशा क्राइसिस सिचुएशन में ही काम किया, क्योंकि इंडियन आर्मी को हमेशा क्राइसिस ही हैंड ओवर किया जाता है. और उस क्राइसिस सिचुएशन में एक सोल्जर किस तरह से अपने बेसिकली एक मेंटल बैलेंस को कायम रखता है और अपनी जो डिसीजन मेकिंग है वो उस तरह के माहौल में भी उस पर किसी किस्म का डेंट नहीं पड़ने देता. उसकी जो एक लाइन ऑफ थॉट है हमेशा क्लियर रहती है. तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कुछ अपने एक्सपीरियंसेस, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जो योद्धा है वो सिर्फ बैटल फील्ड में नहीं होता. योद्धा आप लोगों में भी है. ओनली थिंग इज़ वो छुपा हुआ है. आर्मी में थोड़ी सी ट्रेनिंग के बाद वो बाहर आ जाता है और आपके साथ में कुछ वही पॉइंट शेयर करना चाहूँगा सो दैट यू कैन डिस्कवर द वॉरियर इन यू. चाहे आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं या इस वक्त जो आसपास पैंडेमिक की वजह से सिचुएशन है उसका किस तरह हम मिल करके मुकाबला कर सके ताकि हम इस समस्या के भी दूसरे किनारे तक पहुँच जाए.
सबसे पहले मैं थोड़ा सा टाइम लूँगा, 2 मिनट, और आपको दयाल ग्रुप के बारे में ब्रीफ करना चाहूँगा, क्योंकि हम इस वक्त कैंपस हायरिंग कर रहे हैं और एक 40 साल पुराना ग्रुप क्या अपेक्षा रखता है इंडस्ट्री से, एकेडमिक इंस्टीट्यूट से और आप लोगों से। तो मैं उसके बारे में एक आपसे स्क्रीन शेयर करना चाहूँगा। जस्ट गिव मी 1 मिनट। देव जी, मैं स्क्रीन शेयर करना चाह रहा था। ओके। देव जी, मेरा स्क्रीन विजिबल है? ओके। Yes, sir. Yes. सो दयाल ग्रुप एक 40 साल पुराना ग्रुप है जो एग्री बिजनेस के साथ साथ इस वक्त काफ़ी फील्ड्स के अंदर एक्सपेंड कर रहा है। हमारे जो बिजनेस वर्टिकल्स हैं वो आप इस वक्त देख सकते हैं। हम फर्टिलाइजर्स में डील कर रहे हैं, कैटल फीड में डील कर रहे हैं। हमारी एक अलग से बायो डिवीजन है, सीड्स डिवीजन है। एनिमल फीड में हम पोल्ट्री फीड और एक्वा फीड दोनों देख रहे हैं, और हमारी जो सबसे यंग डिवीजन है वो क्रॉप केयर की। और यहाँ पे आप देख रहे हैं दयाल इन्फोसिस्टम, जहाँ हम आईटी के अंदर वेंचर कर रहे हैं। हमारी जो जर्नी है वो 1979 में शुरू हुई थी, जब हमने न्यूट्रिएंट्स और फर्टिलाइजर्स के ऊपर काम शुरू किया था। और उसके बाद एक सीक्वेंशियली हमारी बाकी जो यूनिट्स हैं वो 2018 में क्रॉप केयर के डेवलपमेंट के साथ पूरी होती है। अगर आप देखें तो इस वक्त दयाल ग्रुप की जो प्रेजेंस है वो 22 स्टेट्स के अंदर है। आई प्राउडली से दिस, हमारा 22 स्टेट्स के अंदर बिजनेस है। पैन इंडिया एक हमारी प्रेजेंस है। डेडिकेटेड दयाल मॉल्स हैं और आउटलेट्स हैं। और अगर आप फर्टिलाइजर्स की बात करें तो हम न्यूट्रिएंट्स में, ग्रोथ और रेगुलेटर्स में, साथ ही बायो फर्टिलाइजर्स और बायो पेस्टिसाइड्स में डील करते हैं। सीड्स की हमारी एक अलग डिवीजन है, और साथ ही फीड में हम एक्वा और पोल्ट्री दोनों फीड ऑफर करते हैं। ये जो हमारी डिवीजन है फीड्स की, ये बाराबंकी लखनऊ के अंदर है। बाकी जो मैंने आपको इससे पहले डिवीजन्स के बारे में बात की वो मेरठ प्रतापपुर में लोकेटेड है। हमारा एक मोटो है, दयाल का है सपना, खुशहाल हो हर किसान अपना। हम चाहते हैं कि बिजनेस प्रॉफिट के लिए तो किया जाता है, लेकिन जो एंड कस्टमर है उसके चेहरे पे भी एक मुस्कान आनी चाहिए, उसको वैल्यू फॉर मनी मिलनी चाहिए। अभी मैं दयाल इन्फोसिस्टम की आपसे बात करना चाहूँगा। ये एक फास्ट ग्रोइंग आईटी वेंचर है। हम एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर, बिजनेस प्लानिंग सॉफ्टवेयर फॉर ट्रेडर्स और फार्म मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर ऑफर कर रहे हैं। इस वक्त हम हमारी कैंपस हायरिंग दयाल इन्फोसिस्टम के लिए इट्स इन फुल स्विंग, और जिस तरह की टेक्नोलॉजीज हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो सामने हम उसका एक आपको ग्लिम्स दिया है। एंड वी आर ऑलवेज एक्सप्लोरिंग न्यू टेक्नोलॉजीज, बी इट ब्लॉकचेन, आईओटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जिस तरह के रोल्स हम इस वक्त देख रहे हैं, वी आर लुकिंग फॉर सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट्स, एंड्रॉयड आर्किटेक्ट्स, वेब डेवलपर्स। Similarly, we are looking for designers. When I say designers, I would like to include business analysts also in this. Quality analyst and the quality assurance department is also looking for people who can do quality testing. So these are various profiles and much more that we would like to gather from MIT, especially students who are into IT and computer science. As far as the work environment at Dayal is concerned, we are a group of scientists, doctors and engineers who are leading the business. It's a very healthy work environment. We have a panel of advisors from the top institutes of the country. And our promoters include Mr. Abhay Kumar, who is the founder and chairman and is an alumnus of IIT Kanpur. He raised the company in 1979. We, at our workplace, what I would like to bring out is that
we basically encourage people to speak out their mind, and we believe in cultivating junior leadership. Also, we feel that गलती करके ही इंसान सीखता है. Only thing is the same mistake should not be repeated again. You are encouraged to make new mistakes. You can make them every day. और दयाल जो है फैमिली, एक दयाल परिवार है. ये पहले मैं सोचता था आर्मी के अंदर ही बात सच होती है कि आर्मी इज अ वन बिग फैमिली, but I have seen that here all sadasya, they are one part of a one big happy family, and that is what counts a lot towards making it an excellent work environment. Career paths, ज़्यादातर इस वक्त जो सीनियर पोजीशंस पे हमारे एसपीपीज और बाकी वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने 25-25 साल पहले दयाल को ज्वाइन किया था. सो एक होम ग्रोन हमारी आर्मी है, और आमतौर पे जो दयाल पे एक बार ज्वाइन कर लेता है कभी छोड़ता नहीं. प्राउडली आई एम सेइंग दिस. वी हैव मल्टीपल डिविजन्स, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज, एंड बेस्ड ऑन स्किल सेट्स वी ऑर्डर इंटरनल ट्रांसफर्स आल्सो. We believe in mixing fun with work, as you can see. And in 13, 15 and 2016, we got the best zinc fertilizer company in India. That was the award we got. We also got Shaurya Samman 2018 and Uttar Pradesh Ratan Samman in 2019. Social responsibility. Being a 40-year-old group, we understand that we are responsible for the development of community around us. So we are into adult education, health, and community and rural development also. And to an extent, the session which I am doing at the moment is also part of our CSR responsibility, where we want to nurture young minds. So if you want to work at Dayal, and the answer is yes, then you can appear in a 2-hour online test and screening. And I would share these details with Dr. Devendra. And these are the kind of tests that we would encourage you to appear in, so that we can do the shortlisting part of it. And I wish all of you good luck as far as your career paths are concerned. And now I would come to what I am here to talk about. So ladies and gentlemen, मैं आपको आज एक कहानी सुनाना चाहता हूँ. और जिंदगी के अंदर जहाँ सब कुछ फेल हो जाता है, वहाँ पे जो कहानियां हैं वो हमेशा सफल हो जाती हैं और हमेशा याद रहती हैं. Yes. और जो ये कहानी सुनाने चाहता हूँ मैं आपको, वो एक सोल्जर की कहानी सुनाना चाहता हूँ, जो कि मैं खुद हूँ. मेरी क्या जर्नी रही है पिछले 52 साल के अंदर, जिसमें से 21 साल मैंने इंडियन आर्मी को दिए. और क्या ह्यूमन वैल्यूज एंड इथिक्स हैं जो एक सोल्जर दिमाग में रखता है. और आप देखेंगे कि यही सोल्जर की जो क्वालिटीज हैं वो एक एंटरप्रेन्योर को चाहिए होती है, क्योंकि वो एक स्टार्टअप शुरू करना चाहता है, एक नई डायमेंशन में, एक नए रास्ते पर चलना चाहता है. तो आइए इन क्वालिटीज को थोड़ा देखते हैं और इन कहानियों के बारे में थोड़ा सा सीखते हैं. डिसिप्लिन की बात करेंगे. एक एंटरप्रेन्योर के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है डिसिप्लिन. लेकिन यहाँ पे बात जो ध्यान में रखने वाली है वो ये कि ये डिसिप्लिन आउटर डिसिप्लिन नहीं होता है, ये इनर डिसिप्लिन होता है. मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंडियन आर्मी की किसी भी यूनिट में बायोमेट्रिक डिवाइस नहीं लगा हुआ है, लेकिन उसके बाद भी सब लोग 5 मिनट पहले पहुँचते हैं, क्योंकि ये जो डिसिप्लिन है ये इनर डिसिप्लिन. तो मैं ये चाहूँगा, कई बार मैंने अपने आप से पूछा कि करोड़ीमल कॉलेज में नॉर्थ कैंपस में पढ़ने के बाद मैं एकेडमी पहुंचा, वहाँ मेरी 1 साल की ट्रेनिंग हुई और मैं सोल्जर बन गया. ट्रांसफॉर्मेशन किस चीज़ से हुई, इतना बड़ा बदलाव कैसे आया? सिर्फ डिसिप्लिन की वजह से. ये डिसिप्लिन ही है जो आपको एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनाएगा, जो आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाएगा, जो सिखाएगा आपको ये चीज़ कि आप प्रायोरिटाइज करें व्हाट इज़ मेजर एंड व्हाट इज़ माइनर, and it will teach you how to conserve your energy for important things in life. So I would like कि आप अपना एक inner discipline जो है inculcate करें, कहीं से outer discipline आपके ऊपर enforce करने की ज़रूरत ना पड़े. ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये अकेडमी की है, और इसमें ये जो कैडेट देख रहे हैं अकेडमी का बेस्ट कैडेट है, जिसको स्वॉर्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है. बहुत प्राइड की बात होती है. एक ऑनर और प्राइड की बात करना चाहूँगा मैं यहाँ पर. देखिए, काम तो सब लोग कर लेते हैं, लेकिन जब आप किसी काम को प्राइड से करते हैं तो उसकी तासीर अलग होती है. जब काम को किसी को आप एक गर्व की भावना से करते हैं तो उसका फ्लेवर बिल्कुल अलग होता है.
छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा इसका। एक आर्मी ऑफिसर सुबह तैयार होकर के ऑफिस के लिए निकलता है, अपनी यूनिफॉर्म पहनता है, तो ये जो आसमान में चांद और तारे हैं, इनकी चमक कम हो सकती है, लेकिन जो एक आर्मी ऑफिसर की वर्दी पे स्टार्स लगे हुए हैं, उनकी चमक कम नहीं हो सकती। छोटी सी बात है कि आपको ऑफिस के लिए ड्रेस पहननी थी, लेकिन वो भी प्राइड से पहननी है आपको। और जब आपका प्राइड यहाँ से शुरू होता है, तो उसी प्राइड की खातिर एक दिन आप जान भी दे सकते हैं देश के लिए, क्योंकि ये ऑनर और प्राइड ही आपको आगे लेके जाएगा। आप एंटरप्रेन्योर बने जरूर, लेकिन ऐसा नहीं कि आप बिजनेस के जो इथिक्स हैं, जो बिजनेस के गाइडलाइंस हैं, उनको फॉलो ना करें। आप अपना जो सोसाइटी की तरफ जो कर्तव्य है उसको भी समझें, और आप एक प्राइड के साथ, एक ऑनर के साथ अपने पूरे डायमेंशन को आगे लेकर चलें। तो मैं चाहूँगा कि हमारे जितने भी यंगस्टर्स हैं वो अपने अंदर एक गर्व की भावना इनकलकेट करें, वो बहुत ज़रूरी है। सेंस ऑफ बिलोंगिंग, आप लोग जब एक स्टार्टअप शुरू करेंगे, आपको अपनी टीम को एक तरह से बांध के रखना पड़ेगा। आपने देखा होगा नेकलेस होता है जैसे, और उसके अंदर अलग अलग मोती होते हैं, हीरे होते हैं, लेकिन उनको बीच में एक धागा बांध के रखता है। आप वो धागा होंगे उनके लिए। एक लीडर धागा होता है जो अपनी टीम को बांध के रखता है। ये जो सामने आप तस्वीर देख रहे हैं, ये ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग कोर्स हो रहा है। और मुझे याद है एकेडमी की एक छोटी सी कहानी, हमारा ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग कोर्स हो रहा था और हमारा कंपटीशन हो रहा था। मैं मैक्टिला प्लेटून में था और हमें जीतना था वो। और जीतने का तरीका ये होता है कि पूरी टीम का जब तक लास्ट मेंबर अंदर नहीं होता, आपका टाइम चलता रहता है। तो मेरे एक साथी के, बर्मन नाम था उसका, पैर में चोट लग गई। तो मैं काफ़ी अच्छा फिजिकली टफ आदमी था शुरू से, मैं काफ़ी आगे चल रहा था, लेकिन जो मेरा डीएस थे, डायरेक्टिंग स्टाफ, टीचर को डायरेक्टिंग स्टाफ बोलते हैं आर्मी में, उन्होंने कहा कि तुम रुक जाओ और इसको साथ लेकर आओ। तो मैंने उसकी राइफल अपने कंधे पे डाली, मेरी राइफल अपने मेरे खुद के कंधे पे डली हुई थी, उसका हाथ अपने कंधे पे रखा और उसको लेके आगे चला। ये सारे के सारे ऑब्स्टिकल्स मैंने उसके साथ क्रॉस किए, और मैं उस लाइन को क्रॉस करने वाला सबसे लास्ट आदमी था। लेकिन जब मैं क्रॉस कर रहा था तो एवरीबडी वाज क्लैपिंग फॉर मी। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो आदमी लास्ट में आता है उसके लिए क्लैप करते हैं क्या कभी? क्लैप तो उसके लिए करते हैं जो सबसे आगे आता है, लेकिन मेरे लिए क्लैप इसलिए हो रही थी कि मैंने एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग जो है वो उसकी बात की थी। और मैं चाहूँगा कि आप अपनी टीम को ऐसे ही आगे चलें। देखिए, आप एंटरप्रेन्योर होंगे, आप ये मत सोचिए कि एक एयर कंडीशन रूम मिल जाएगा आपको, बाहर एक पीएन मिल जाएगा। वो फैसिलिटीज आएंगी आपकी जिंदगी के अंदर 10 या 15-20 साल के बाद। अभी तो आपको जिसे कहते हैं अपना बेस्ट देने के लिए तैयार होना चाहिए। उसके लिए आपको अपनी टीम को एक परिवार की तरह बांधकर साथ रखना। टफ और क्वालिटी ट्रेनिंग, ये जरूर इंश्योर कीजिएगा कि आपकी खुद की क्वालिफिकेशंस पूरी हैं और जिन टीम मेंबर्स को आप एम्प्लॉय कर रहे हैं उनकी स्किल सेट पूरा है, और नहीं है तो आप उनको ऑन द जॉब ट्रेनिंग दीजिए। आर्मी के अंदर हमारी जो ट्रेनिंग है बहुत ही ज़्यादा टफ होती है। हम महाजन के अंदर 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर गन्स फायर करते हैं, लोहे की तरह वो तप रही होती हैं, और उनके अंदर शेल्स को डालना और फायरिंग करना। और इसी तरह से हमारी जब हाई ऑल्टीट्यूड के अंदर पोस्टिंग्स होती हैं, सियाचिन जैसी जगहों पे, तो -30 और -50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, लेकिन स्टेजिंग कैंप्स के दौरान हमारी ट्रेनिंग होती है और हम उन हाइट्स पे पहुंचते हैं। हमेशा अपनी जो ट्रेनिंग है उसमें 2 ही चीज़ें ध्यान रखनी है आपने, एक तो उसमें क्वालिटी होनी चाहिए और टफ होनी चाहिए। मेरे ख्याल से आप लोग 18 घंटे काम करने चाहिए 24 में से 6 घंटे सो गए तो सो गए, बिकॉज आप लोग यंग हैं, आपके अंदर उस तरह की एनर्जी है। सो प्लीज फोकस ऑन योर स्किल सेट्स, सर्टिफिकेशंस, ट्रेनिंग, एंड मेक इट टफ एंड मेक इट क्वालिटी ओरिएंटेड। क्रॉसिंग द लिमिट्स, एज अ एंटरप्रेन्योर आपको अपनी लिमिट्स को क्रॉस करना पड़ेगा। एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा आपको। मेरी जम्मू कश्मीर में डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर पोस्टिंग थी। आप सबको डोडा के बारे में नहीं पता होगा, सबको श्रीनगर वैली के बारे में पता है ना। डोडा वैली जो है वो श्रीनगर से पहले ब्रांच ऑफ हो जाते हैं, बनिहाल टनल से राइट हो जाते हैं तो डोडा में जाते हैं। और वहाँ पर इस तरह के पहाड़ हैं, आपको ऐसा लगता है जैसे चाइना वॉल्स हो। उस इलाके में घुसते ही आपको एक किस्म का साइकोलॉजिकल
डोमिनेशन सी महसूस होने लगती है, वेरी वेरी टफ। और काम ये वहाँ मिलिटेंट मारने थे। तो एक बार मैं अपनी कंपनी से एक प्लेटून लेके काफ़ी दूर निकल गया, और जब मिलिटेंट्स को ये पता लगा कि कंपनी कमांडर पोस्ट पे नहीं है, तो हमको सस्टेन करने के लिए एक हेलीकॉप्टर आता था वहाँ पर। उन्होंने हमारे हेलीपैड को जला दिया। और दूसरी अब उनके पास ऑप्शन ये थी कि वो हमारी पोस्ट को अटैक कर दे, क्योंकि उसमें लोग कम थे और मैं बाहर था। करीब 40-50 किलोमीटर दूर निकल गए थे अपनी पोस्ट से। हमें अपनी पोस्ट को बचाना था। हमारे पास रॉकेट लॉन्चर्स, लाइट मशीन गन्स, अपने हथियार, AK-47 सब कुछ था। आप मानेंगे नहीं, हमने ऑलमोस्ट भागना शुरू कर दिया वापस, और हम 3 से 3.5 घंटे में वापस पोस्ट पे पहुंचे। मिलिटेंट्स ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये फौज इतना लंबा डिस्टेंस इतनी जल्दी ट्रैवल कर लेगी। और बाद में उनके रेडियो इंटरसेप्ट से पता लगा हमें कि उन्होंने पोस्ट पे जो अटैक का प्लान था उसको कैंसिल कर दिया, और अपनी पोस्ट को बचा पाए। और मुझे पता है कि जब हम वहाँ पे इतना लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करके पहुंचे थे, तो हमारे जो सूबेदार मेजर साहब है, उन्होंने चाय पिलाई थी हमें और हलवा खिलाया था। और मैंने अपने जीवन में इतना टेस्टी हलवा नहीं खाया। 50 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद रात को जब मैं लेटा, तो मैंने अपने आप को एक ही बात बताई, मैं कर्नल साहब, आप 50 किलोमीटर 3.5 घंटे में कवर कर सकते हैं। मतलब मुझे अपने बारे में ये बात पता ही नहीं थी, और आपको भी नहीं पता कि हमारी बॉडी की कोई लिमिट ही नहीं है। आप सब लोगों को अगर हम 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए ट्रेनिंग कर देना, आप सब माउंट एवरेस्ट के टॉप पे पहुंच सकते हैं। भगवान ने हम सबको एक जैसी कैपेबिलिटी दी है। हमारे जो ब्लॉक्स हैं वो मेंटल ब्लॉक्स हैं, वरना हमारी कोई लिमिट नहीं है। तो एज एंटरप्रेन्योर आपकी सोच की भी कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए। आपकी रिस्क टेकिंग जो एबिलिटी है वो जबरदस्त होनी चाहिए। आप लाइफ में जितना बड़ा रिस्क लेंगे, आपको उतने बड़े ही डिविडेंड लगेंगे। लेकिन साथ ही जो बिजनेस मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं, उनके ऊपर फाउंडेशन आपको पूरी खड़ी करनी पड़ेगी। नेवर बी अफ्रेड ऑफ क्रॉसिंग योर लिमिट्स, नेवर बी अफ्रेड ऑफ डूइंग आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, एंड नेवर थिंक कि मैं ये नहीं कर सकता। आपको पता ही नहीं है कि आप क्या कर सकते हैं। आप 3 घंटे में 50 किलोमीटर रॉकेट लॉन्चर उठा के चल सकते हैं। ये फिजिकल लिमिट की बात कर रहा हूँ। मेंटल लिमिट्स, यू कैन टच द स्काई। ये सामने एक फोटो दिखा रहा हूं मैं आपको, ये एम्ब्रेसिंग अनसर्टेनिटी एंड डेंजर लिखा है। ये मेरे ख्याल पंजाब के रहने वाले हमारे सिख रेजिमेंट के सोल्जर्स हैं। 780 किलोमीटर बॉर्डर है हमारा, ये नहीं पता किस जगह है। ये जो वेपन बाहर निकला हुआ है, ये लाइट मशीन गन है, इन्फेंट्री का सबसे वर्सेटाइल वेपन है। इनकी आंखों में देखिए, ये आंखें दुश्मन पे लगी हुई है। ये झपकेंगे भी नहीं अपनी आंखों, क्योंकि बॉर्डर के ऊपर आंख झपकने का मतलब बहुत महंगा हो सकता है। मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि हमारे जो सोल्जर हैं, इनको ये एक ऐसे एटमॉस्फेयर में है जहां कहीं से भी गोली आ सकती है इस वक्त। तो ये कहां पर हैं इस वक्त लोग, और इतनी अनसर्टेनिटी और डेंजर को ये कैसे संभाल के रखते हैं। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं, हमको ये सिखाया जाता है कि नेवर क्वेश्चन द वाइट्स। वाइट्स क्या होते हैं? हमको हर एक्सरसाइज के लिए एक सिनारियो दिया जाता है, ये ब्लू लैंड है, ये रेड लैंड है, और उसी के अंदर रह के फिर हमें अपनी पूरी स्ट्रैटेजी प्लान करनी पड़ती है। हम वाइट्स यानी कि उस कहानी को कभी भी क्वेश्चन नहीं करते, ये ऐसी क्यों है। हम ये देखते हैं कि ये कहानी के अंदर मेरा रोल क्या है। इस वक्त कोविड-19 से हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। हमें ये नहीं पूछना कि कोविड-19 कहाँ से आया, क्यों आया, आपके हाथ में नहीं है ना। आपने ये देखना है कि इस सिचुएशन में आपको करना क्या है। आप प्रिकॉशंस लें, आप आगे बढ़ते रहें। दूसरी चीज हमें ये सिखाई जाती है कि हमें सम रहना है। ना तो हम बहुत ज्यादा खुश रहते हैं और ना बहुत ज्यादा उदास रहते हैं, हम बीच में रहते हैं। तो उससे आपकी जो शॉक्स को अब्जॉर्व करने की ताकत है वो बढ़ जाती है। तो आप लाइफ की किसी भी एडवर्स सिचुएशन में जब होते हैं, ये मत कहिए अपने आप को कि मेरे साथ क्यों हो गया। आप ये देखिए कि मैं इस सिचुएशन में कर क्या सकता हूँ। आज इस कोविड-19 की सिचुएशन में हम कर क्या सकते हैं, वो ज्यादा जरूरी है, बजाय ये क्वेश्चन करने के कि ये क्यों हो गई और कैसे हो गई। वो तो हम बाद में कभी सोचेंगे बैठ करके। तो जब भी लाइफ में, और हमेशा ध्यान रखिए, ग्रोथ अगर आपको लाइफ में चाहिए तो आपको खतरे का सामना करना पड़ेगा। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी ग्रोथ भी हो जाए और आप कंफर्टेबल हो। आप जब अनकंफर्टेबल होंगे तभी आपकी ग्रोथ होगी।
इतना ज्यादा आप अनकंफर्टेबल हो लाइफ में, ये इस बात की पहचान है कि आपकी ग्रोथ हो रही है। सुबह से शाम अगर कुछ करने के लिए नहीं है और बड़े आराम से जिंदगी चल रही है, तो आप अपने आप को बता सकते हैं कि मैं तो ग्रो कर ही नहीं रहा हूँ। आप ग्रो तभी करेंगे जब आप अनकंफर्टेबल हो। तो ये थोड़ा मैंने आपको एक नुस्खा बताया है, ये अपनी जिंदगी में अनसर्टेनिटी और डेंजर को आप कैसे संभाल सकते हैं। क्योंकि एज अ एंटरप्रेन्योरशिप जब आप प्रैक्टिस करेंगे, बड़े सारे मौके आएंगे आपकी लाइफ में जब आपको आगे का रास्ता नजर नहीं आएगा। आप एक स्टेप लेंगे तो आपको दूसरा नजर आएगा, दूसरा स्टेप लेंगे तो तीसरा नजर आएगा। और कई लोग क्या करते हैं, जब सामने अंधेरा नजर आता है तो वो जर्नी छोड़ देते हैं। उनको ये नहीं पता बस वो तो टर्न था, और टर्न करते ही सामने रोशनी थी। आपकी परसिस्टेंस जरूरी है एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। आपको रेगुलर एफर्ट लगाता रहना पड़ेगा, कॉन्टिन्यूस। दैट इज व्हाट विल मेक यू एन एक्सीलेंट एंटरप्रेन्योर। यू कैन नॉट अफोर्ड टू गिव अप। आपको गिव अप नहीं करना। एक फियरलेसनेस की बात करना चाहूंगा। ये सामने सोल्जर की आंखों में देखिए, मेरा ख्याल एक फायरिंग के दौरान एफयूपी क्रॉस कर रहा है। एफयूपी को फार्मिंग अप प्लेस होती है, और एनिमी के बंकर्स की तरफ बढ़ रहा है। आप सोचते हैं इसके मन में डर नहीं है? देखिए, हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं, इस सोल्जर के पीछे भी एक ह्यूमन बीइंग है। लेकिन फियरलेसनेस का मतलब ये नहीं है कि डर ना हो। फियरलेसनेस का मतलब ये है कि डर के बावजूद काम करना। बस, डर कोई अननेचुरल इमोशन नहीं है। आपको अगर किसी स्थिति से डर लगता है तो आप अपने आप को ये मत बताइए कि मैं ये अननेचुरल है या मैं गिल्टी महसूस कर रहा हूँ। आप अपने आप को ये बताइए कि हाँ, मुझे डर तो लग रहा है, लेकिन मैं इसके बावजूद अपने लक्ष्य की प्राप्ति करूंगा। आई विल अचीव माई टारगेट डिस्पाइट माई फियर। वो फियरलेसनेस है। और ये फियरलेसनेस मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। एक एंटरप्रेन्योर के मन में हजार डर होते हैं। मैं सक्सेसफुल होऊंगा या नहीं, मेरा बिजनेस चलेगा या नहीं, मेरा पैसा तो नहीं डूब जाएगा, मेरी टीम मेरा साथ देगी या नहीं। इन सब डरों के बावजूद आप अगर आगे चल सकते हैं, वो फियरलेसनेस है। वो आपके अंदर का जो एंटरप्रेन्योर है उसको बाहर लेकर आएगी। तो ये करना आपके लिए बहुत जरूरी है, फियरलेस होना। अकाउंटेबिलिटी। हमारा आर्मी के अंदर एक प्रिंसिपल है कि अगर किसी से गलती हो जाती है तो खुद ही अपना हाथ ऊपर कर देता है। हमें ढूंढना नहीं पड़ता किसकी किसकी गलती थी। मैंने कई बार देखा, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में सर्व किया है, यही नहीं पता चलता गलती किसकी है। तो अगर यही नहीं पता लगेगा गलती किसकी है तो सुधार कैसे होगा? तो आपको पहले तो अपनी जो खुद की अकाउंटेबिलिटी है वो 100% रखनी है। दूसरा, अपने टीम मेंबर्स को अकाउंटेबल काम करवाना है आपने एज ए एंटरप्रेन्योर, क्योंकि आप एक स्टार्टअप है। उनको बताना है कि इस काम की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अगर ये नहीं हुआ तो मैं सिर्फ तुमसे पूछूंगा। एक काम को आप 10 लोगों को मत दीजिए, उसकी पिन पॉइंटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए, तब अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। और उससे फिर एक, जिसे कहते हैं क्वालिटी काम होता है, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप होती है। करेज ऑफ कन्विक्शन, ये फियरलेसनेस से अलग है। अगर आप मुझसे पूछे कि करेज ऑफ कन्विक्शन क्या होती है, तो मैं कहूंगा करेज ऑफ कन्विक्शन है आपकी सच बोलने की क्षमता। और ये 90% लोगों में नहीं होती। 90% लोग जो हैं वो सच नहीं बोल सकते। आप सामने वाले को देख के उसको खुश रखने के लिए उसके हिसाब से सच को तोड़ मरोड़ देते हैं। आप सच बोलिए, एंड आप देखेंगे कि आपके जीवन में, आपके बिजनेस में एक क्वालिटेटिव चेंज आएगा। मेरी स्कूल ऑफ आर्टिलरी के अंदर पोस्टिंग थी, और वहाँ पर मैं, स्कूल ऑफ आर्टिलरी पूरे यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड है, और वहाँ पर आर्मी ऑफिसर्स के लिए और जवानों के लिए कोर्सेज चलाए जाते हैं। तो वहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है GSO 1 SD की, स्टाफ ड्यूटीज की। मैंने देखा कि उस पोस्ट के ऊपर बार बार चेंज होती रहती थी वो पोस्ट। कभी एक ऑफिसर बैठ जाता था, कभी दूसरा, इसलिए उसके काम में कॉन्टिन्यूटी नहीं थी। तो एक बार ऐसी हमारी मीटिंग हो रही थी, हमारे ब्रिगेडियर साहब थे, उन्होंने कहा कि भाई क्या फीडबैक है। मैंने कहा सर, एक पोस्ट है और उसको हमने म्यूजिकल चेयर बना रखा है, कभी कोई 2 महीने के लिए बैठता है, कभी कोई 2 महीने के लिए बैठता है, उसमें कॉन्टिन्यूटी कैसे आएगी? तो उनको अच्छा नहीं लगा। लेकिन उसके आने वाले महीनों के अंदर वो पोस्ट के ऊपर जो बंदा आया वो 3 साल रहा, और उससे ऑर्गेनाइजेशन का बहुत फायदा हुआ। बाद में उन्होंने मुझे कहा भी कि आपने सबके सामने ऐसे बोल दिया। मैंने कहा सर, बोल तो दिया था, लेकिन कहा सच था। और मैं अपने किसी पर्सनल गेन की बात नहीं कर रहा था,
मैं ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट की बात कर रहा था। आपको भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को बरकरार रखने के लिए सच का साथ देना पड़ेगा। आपके अंदर ये करेज होनी चाहिए, आपके अंदर ये कन्विक्शन होनी चाहिए कि आप सच बोल सको। इसके लिए बहुत दम चाहिए, और मुझे आप जो यंगस्टर्स हैं आपके अंदर वो दम देखना है। डू वॉक विद द स्ट्रेंथ ऑफ ट्रुथ, दैट्स व्हाट आई वांट। एक ये कंपैशन और सेक्रीफाइस की मैं आपको स्लाइड दिखा रहा हूँ, और ये आप जो स्लाइड देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ समय पहले बाढ़ आई थी, फ्लड्स आई थी, और इंडियन आर्मी ने फिर जो लोग बाढ़ के अंदर फंस गए थे उनको, ये इंजीनियर के हमारे जवान हैं जो अपनी आर्मी की बोट्स में इनको बाहर निकाल रहे हैं। आपने अपने अंदर ये कंपैशन और सेक्रीफाइस का जो भाव है ये हमेशा बना के रखना है। देखिए, आज हमारे घर के पास हमारे पड़ोसियों को कोविड हो गया था, शायद उनके रिश्तेदार भी उनके घर आने के लिए तैयार नहीं थे, खाना देने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन हमने 14 दिन दिया। कंपैशन है, हमें लगा हमें इनकी मदद करनी चाहिए इस वक्त कोविड के टाइम में। और अपने जीवन में कभी भी जब भी आप किसी का हाथ पकड़ सके जरूर पकड़ना हो। आपके अंदर कुछ बड़ा हो जाएगा, आपके अंदर कुछ संभल जाएगा, आप मैच्योर हो जाएंगे। सुन, हम आर्मी के अंदर सद्भावना प्रोजेक्ट्स करते हैं क्योंकि वहाँ पे थीम है विनिंग द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ पीपल। तो मैंने एक टेररिस्ट अफेक्टेड एरिया के अंदर एक सद्भावना प्रोजेक्ट किया जिसके लिए हमें 30 करोड़ रुपए मिले थे, और उस इलाके में लोगों ने कभी नलके का पानी नहीं देखा था, बिजली नहीं देखी थी। हम उनका सामान जब आ रहा होता था तो रास्ते में टेररिस्ट मिल जाते थे। उन हालात में हमने उनके घर बिजली पहुंचाई, और जब पहली बार उन्होंने बिजली देखी तो दे स्टार्टेड डांसिंग। कश्मीर के बारे में लोगों को पता नहीं है, बहुत पुअर है वहाँ के लोग, बहुत अच्छे लोग हैं और बहुत पुअर है। तो वहाँ पे रूरल डेवलपमेंट के काम को हम आगे लेके गए। तो क्योंकि सब कुछ गन से नहीं जीता जा सकता, यू हैव टू विन द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ पीपल। सो ऑलवेज मेक इट अ पॉइंट टू डेवलप दिस कंपैशन इन यू। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, आर्मी के अंदर खेलों के ऊपर बहुत जोर है। आप में से जो भी लोग खेलों में अच्छे हैं और अगर वो आर्मी ज्वाइन कर लें तो आपकी तरक्की को कोई नहीं रोक सकता, और वैसे भी जो आदमी खेल खेलता है उसकी तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। ये सामने इस फोटो को देखिए, ये रिवर राफ्टिंग हो रही है, इसके अंदर क्या सीख रहे हैं ये? टीम स्पिरिट, कोऑपरेशन, करेज, फिजिकल स्टैमिना, मेंटल रोबस्टनेस, क्या नहीं सीख रहे हैं? मुझे आज की जनरेशन से ये शिकायत है कि आप लोग खेल नहीं खेलते। आपको फुटबॉल भी खेलनी होती है तो आप मोबाइल पे खेलते हैं, ऐसा क्यों? आप लोग फिजिकली एक्टिव रहिए और आप देखेंगे कि आपको बहुत कुछ जो है मिलेगा स्पोर्ट्स से, और आप एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कल्टीवेट करेंगे। ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट क्या है वैसे? ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है कि आप बेसिकली एक खिलाड़ी बन जाओ। कोविड-19 का टाइम है ना, सबके मन में दहशत है ना, आप खेलो। एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो ना, रिस्क लेना पड़ेगा, लो, खिलाड़ी बनो जिंदगी के अंदर, स्पोर्ट्समैन बनो, डर के नहीं जीना है। जिंदगी को दोनों हाथों से खोल के वेलकम करो। मिल्खा सिंह जी स्पोर्ट्समैन थे ना, 94 इयर्स में वो हमें छोड़ के चले गए, लेकिन क्योंकि स्पोर्ट्समैन थे इसलिए उन्होंने कभी भी जिंदगी में स्ट्रगल नहीं छोड़ी। रोम ओलंपिक्स में इंडिया को पहला एथलेटिक्स का मेडल मिल सकता था, 1 सेकंड से मिल्खा जी नहीं जीत पाए थे। आने के बाद 80 में से 77 रेसें जीती उन्होंने। कॉमनवेल्थ क्या, एशियाड क्या, फेलियर को उन्होंने कभी भी अपने सक्सेस के बाधा नहीं करने में आने दिया। मैं देखता हूँ आप लोग कई बार फेलियर से घबरा जाते हैं। आप फेल होंगे तभी तो आपको पता लगेगा कि सक्सेसफुल कैसे होना है। आप मिस्टेक्स करेंगे तभी तो आपको पता करेगा कि आगे कैसे नहीं करनी है। आप लोग एक बिजनेस शुरू करते हो, आपको 6 महीने में थोड़ी ना सारे डिविडेंड्स मिल जाएंगे, सालों का काम होता है। तो अपने अंदर एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, एक खिलाड़ीपन की भावना जरूर लेके आइए, दैट विल बी वेरी नाइस। ये मेरी एक, अब मैं अपनी प्रेजेंटेशन की आखिरी स्लाइड के ऊपर आ रहा हूँ। मैं कैरेक्टर की बात करना चाहूंगा। आप मेरे अगर पूरे के पूरे प्रेजेंटेशन के अंदर कुछ भी भूल जाए तो एक चीज याद रखिएगा, कैरेक्टर। कैरेक्टर क्या है? आपकी जो सबसे
इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है उसको कैरेक्टर कहते हैं। आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट एक क्वालिटी, जैसे कई बार कहते हैं ना यार वो आदमी बड़ा अच्छा है, रात को 12 बजे भी बुलाओ तो पहुंच जाएगा, वो उसका कैरेक्टर है। आपका कैरेक्टर ऐसे होना चाहिए कि लोग आपके ऊपर डिपेंड कर सकें। फौज के अंदर तो कैरेक्टर के, अगर किसी का कैरेक्टर अच्छा नहीं होता उसको फौज में रखते नहीं हम। हमें चाहिए ही नहीं कोई बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी, हमें बस एक आदमी चाहिए जो कि बहुत सॉलिड हो और कैरेक्टर हो। अगर वो ये कह दे कि ये पोस्ट मैं छोड़ूंगा नहीं, तो बस वो छोड़ेगा नहीं। आपको या तो वो हंसता हुआ मिलेगा या उसकी डेड बॉडी मिलेगी, लेकिन वो पोस्ट पे ही मिलेगी। वो कैरेक्टर चाहिए हमें आज की जनरेशन के अंदर, कि आप लोग जहां खड़े हो जाएं, आपके अंदर एक स्टेबिलिटी हो, एक डिपेंडेबिलिटी हो, एक रिलायबिलिटी हो, लोग आपको ट्रस्ट कर सके, विश्वास कर सके। मुझे पता है कि शायद इस तरह की बातें एक टेक सेवी जनरेशन के साथ करना थोड़ा सा ओल्ड फैशन्ड हो सकता है, लेकिन मैं करना चाहता हूं आपके साथ क्योंकि ये जरूरी है। ये मेरी लास्ट स्लाइड है। अ हीरो इज समवन हु गिव्स हिज लाइफ फॉर समथिंग बिगर देन हिमसेल्फ। एक हीरो वो है जो अपने से ऊपर किसी चीज के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दे। इंडियन आर्मी की जो फिलॉसफी है हमारे कैंट्स के अंदर 5 शब्दों के अंदर लिखी हुई है, और वो 5 शब्द क्या है? मेरी इज्जत, देश की इज्जत। इसी तरह इस वक्त जैसे आप MIT के साथ हैं, तो आपकी इज्जत MIT की इज्जत से जुड़ी हुई है। इसी तरह से जब आप लोग अपने अपने बिजनेसेस खोलेंगे तो आपकी इज्जत अपनी ऑर्गेनाइजेशन की इज्जत के साथ जुड़ जाएगी। अपनी इज्जत को किसी बड़ी चीज की इज्जत के साथ जोड़ दीजिए, आप भी बड़े हो जाएंगे और आपके अंदर का जो हीरो है वो बाहर आएगा। बिकॉज अ हीरो इज समवन हु गिव्स हिज लाइफ फॉर समथिंग बिगर देन हिमसेल्फ। यहाँ पर मेरी प्रेजेंटेशन खत्म होती है, और मैं उम्मीद करूँगा कि जो हमारी यंग जनरेशन है वो अपने कैरेक्टर को, अपनी स्टेबिलिटी को, अपनी सोच को, अपने एंटरप्रेन्योर होने के दमखम को आगे लेके चले, ताकि आप सबके ऊपर हमें गर्व हो। थैंक यू सो मच। आपका कोई सवाल हो तो मैं जरूर लेना चाहूँगा। Wonderful. We need a big round of applause for our Colonel Manish Sharma ji. So guys, just write down on the chat box a big Jai Hind to Manish Sharma ji. And if you have any question, just write to raise your hand. I want that you come on the video, then ask. And till then, I love to invite our another guest who is himself entrepreneur. He faced the all challenges because sometime our coach and players, those play the match, they knows what are the nitty-gritty, what are the challenges. So love to invite Gaurav Jain ji. Gaurav Jain ji, most welcome. Just open the video and share your personal views and typical language of the Hindustan, so that everyone can be aware. Yes, be an entrepreneur, be a warrior, ultimately success. Welcome. Thank you, Dr. Dev. I think so. A special thanks to Colonel Manish for explaining and relating how a soldier can be an entrepreneur and how the important qualities of the soldiers will really help an entrepreneur to be successful. While Colonel Manish was explaining the things, I was correlating with my situation, and I think all the things that he has told is perfectly match the perfect caliber of an entrepreneur. It's very important to be disciplined, to be a good and great entrepreneur in case you want to have a success. और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी वो डर के आगे ही जीत है, अपने फियर को ओवरकम करना ही सक्सेस है. इन अदर वर्ड्स आई वुड जस्ट से दैट जैसा कल मनीष ने समझा, फेलियर्स आते हैं, बट उन फेलियर को कैसे टैकल करना है वो सबसे इम्पोर्टेंट है. सो आजकल जनरली क्या होता है, जब स्टूडेंट्स के पास कोई फेलियर आता है ना, उसको ये नहीं पता होता, इज नॉट एबल टू एक्सेप्ट दैट फेलियर, और उस फेलियर से मुझे क्या लर्न करना है, क्या आगे ओवरकम करना है, क्या उसकी रेमेडी, क्या उसका सोल्यूशन है, उस तरफ वो सोचना ही बंद कर देता है. उसके पास एक फेलियर आ गया तो वो निराश हो जाता है. जस्ट एक स्टार्टअप, उसने स्टार्टअप किया, लेट्स सपोज उसने इन्वेस्ट किया 10,000 रुपीज, उसका बिजनेस ग्रो नहीं किया, तो वो वहीं हताश होकर बैठ जाएगा कि यार मेरा 10,000 का नुकसान हो गया, मैं क्या करूं क्या करूं. वो ये तो क्लिप करता रहेगा मेरा 10,000 का नुकसान हो गया.
उसने कभी ये नहीं सोचा कि उस 10,000 से मैं आगे क्या कर सकता हूँ, ये तो हो गया, आगे क्या करना है, टू मूव ऑन, आगे वो सोचना बंद कर देता है। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क इन लाइफ कि हम अपने फेलियर से सीखें। मिस्टेक जिंदगी में हमेशा 100 मिस्टेक करो, 200 मिस्टेक करो, 400 मिस्टेक करो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डू मिस्टेक्स, राइट। पर हर मिस्टेक एक यूनिक होनी चाहिए। अगर आप एक ही गलती 100 बार दोहराते हैं तो आप समझदार नहीं है, तो इस गलतियों को दोहराने की जरूरत नहीं है। आप 1000 गलतियां करें पर रोज एक अलग गलती करें और उससे सीखें, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। सो एंटरप्रेन्योर का सबसे इंपॉर्टेंट टास्क यही होता है। जैसे कि कर्नल मनीष ने बताया, उसको फियर बहुत होता है, डर बहुत होता है, सक्सेस होगा नहीं होगा, टीम साथ देगी नहीं देगी, ऐसा होगा, मार्केट अडाप्ट करेगी, मार्केट एक्सेप्ट करेगी, मार्केट में पैसा लगाऊंगा, मार्केट से पैसा आएगा नहीं आएगा, वो फियर सब है। उसको ओवरकम कैसे करना, उसका सॉल्यूशंस क्या है, वर्क ऑन दैट। प्रॉब्लम्स तो सारी जिंदगी आएगी आएगी। प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि आपका आज प्रॉब्लम है कल नहीं आएगी, या अभी मेरा बिजनेस स्मूथ चल रहा है तो हो सकता है कल कोई अप एंड डाउन नहीं आएगा। आप जस्ट थिंक ऑफ इमेजिन, कोविड से पहले किसी ने सोचा था कि ऐसे लॉकडाउन हो जाएगा? नहीं सोचा था। कोविड के बाद किसी ने सोचा था वर्क फ्रॉम होम जैसी चीज होगी? नहीं होगी। तो आया, कुछ सोल्यूशन ढूंढा, कुछ ऑल्टरनेटिव ढूंढे लोगों ने। तो ये सब पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लाइफ है, ये हमेशा चलता रहेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि एक स्ट्रेट लाइन में आपकी लाइफ स्मूथ चलती रहे। वो कहते हैं ना, ईसीजी ग्राफ में भी स्ट्रेट लाइन बताती है मैं डेड हूं। तो अप एंड डाउन इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो ये तो आप हमेशा ही मान के चलें कि अप एंड डाउन आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्रूशियल फॉर द लाइफ। अब मैं एंटरप्रेन्योर के बारे में बात करना चाहूंगा। बीइंग ए एंटरप्रेन्योर या बीइंग ए स्पोर्ट्स पर्सन, दोनों के लिए एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है जो कर्नल मनीष ने भी पॉइंट आउट की, वो है पैशन और डेडिकेशन, हार्ड वर्क। ये दो चीजें हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। सो आप हमेशा इस चीज को ध्यान रखें कि अपने पैशन को फॉलो करना। आप जो भी काम करें, यू नीड टू बी पैशनेट अबाउट दैट वर्क। ऐसा ना हो आप पढ़ाई करें तो ठीक है, पढ़ाई में फोकस रखिए। आप कोई काम कर रहे हैं, यू हैव मेड अ स्टार्टअप, तो ऐसा मत सोचिए कि मैं 2 घंटे स्टार्टअप पे काम करूंगा तो काम हो जाएगा। नहीं, आपको उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एक पेपर पे होमवर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्टअप आज के तरीके में जो सबसे बड़ी चीज लैक करते हैं वो होमवर्क। होमवर्क इन द सेंस एक फ्रूटफुल बिजनेस मॉडल। आपने कहा जी ये प्रोडक्ट अच्छा है, मैं ये बनाऊंगा, इतना पैसा रखूंगा, मेरे पास वेंचर कैपिटल आ जाएगा, मुझे इतना आ जाएगा, मैं बाद में इसको बेच दूंगा। जो स्टार्टअप के ऊपर मेथोलॉजी है उसको इसको चेंज करें। स्टार्टअप के ऊपर ये सोचें, ओके ये आइडिया है, इसको ऐसे करेंगे, ऐसे बिजनेस प्लान है मेरा, ऐसे फाइनेंस आएगा, इतना पैसा मुझे चाहिए, इतना कैपिटल मुझे चाहिए, मार्केट में एडेप्टेबिलिटी का है, कौन से एरिया मेरा फोकस एरिया है, कहाँ मैं उसको बेच सकता हूँ, किस एरिया में मैं उसको नहीं बेच सकता। उन चीजों के ऊपर सोचें, उस चीजों को प्लान आउट करें, उस चीजों के ऊपर सर्वे करें। 80% स्टार्टअप जो फेल होते हैं उसमें लैक ऑफ सर्वे और लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ कंज्यूमर रहता है। आपने प्रोडक्ट बनाया, हो सकता है बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, यू थिंक इट्स अ फैंटास्टिक प्रोडक्ट, इट्स एक्सीलेंट, एंड द कस्टमर वुड अडॉप्ट एंड परचेज दैट। फ्रूट कितना बिकेगा, जैसे आलू प्याज बिकते हैं ऐसे बिकेगा। बट हो सकता है उस सेगमेंट के जो कस्टमर है वो कस्टमर ये लोग, यू आर नॉट एबल टू कैटर दोस कस्टमर, और इन केस यू आर एबल टू कैटर दैट कस्टमर्स, यू आर नॉट एबल टू कन्विंस दोस कस्टमर्स। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि दोनों चीजें साइड बाय साइड हो। आपको कस्टमर को भी ढूंढना है और कस्टमर को भी आपका प्रोडक्ट समझ में आना चाहिए, तब वो चीज बिकेगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपने प्रोडक्ट बनाया और कस्टमर उसे आंख बंद करके आलू प्याज की तरह खरीद ले। इट्स नॉट आलू प्याज, इज बाइंग समथिंग। उसको समझ में आना चाहिए वो प्रोडक्ट है या नहीं है, उसको खरीदूं मैं या ना खरीदूं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं जो बोलना चाहूंगा, लाइफ के अंदर कभी भी डरे नहीं। अगर आप डर के बैठ गए तो समझ लो ये आपका बैकफॉल शुरू हो गया। आप इस चीज को हमेशा जिंदगी में याद रखें कि डरने के बाद ना सॉल्यूशन ढूंढना इंपॉर्टेंट होता है। डर के बाद पीछे बैठना इज नॉट अ सॉल्यूशन। जैसे कर्नल मनीष ने बताया, वो फ्रंट लाइन पे खड़ा है बेचारा, फियरलेस फेस पे खड़ा है, बंदूक लेके कस्टमर दुश्मन के बंकर में जाने के लिए तैयार रखा है। तो एंटरप्रेन्योर तो हमेशा बंकर के आगे खड़ा होता है। एंटरप्रेन्योर के साथ कभी ऐसा नहीं होता कि वो आराम से बैठा है एसी रूम में, उसके साथ हमेशा फायर फाइटिंग चलती है। चाहे वो एसी रूम में बैठा है, चाहे वो सड़क पे घूम रहा है, चाहे वो गाड़ी में घूम रहा है। तो इट्स अ बेसिकली 24/7 जॉब बीइंग एन एंटरप्रेन्योर। आप ऐसे कभी सिट रिलैक्स नहीं हो सकते। अगर आप एक स्टेज पे पहुंच गए तो अगली स्टेज पे जंप करें और थोड़ा थोड़ा सोचें, थोड़ा थोड़ा चले आगे। ऐसा कभी नहीं होगा आज मेरी टर्नओवर 1 करोड़ की है, लेट्स प्लान फॉर 100 करोड़, ऐसा नहीं होता। आज 1 करोड़ की है, लेट्स
टारगेट फॉर 1.5 2.5 ऐसा कभी जब आप देखेंगे ना जंप करके कहीं स्टेज पे पहुंचना इट्स वेरी डिफिकल्ट। जंप करने से आप आज 1 CR पे हैं, लेट्स सपोज नेक्स्ट ईयर प्लान मैं 100 CR करूंगा, बोल तो 100 CR, उसके लिए क्या प्लानिंग है, क्या चाहिए, प्रोडक्शन कितनी बढ़ानी पड़ेगी, मार्केटिंग में कितना इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा, फाइनेंस कितना चाहिए, उसके बारे में नहीं सोचा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू टेक अ स्टेप बाय स्टेप अप्रोच फॉर सक्सेस इन लाइफ। ऐसे सक्सेस कभी भी ऐसे जादू की तरह नहीं आती, मिरेकल जैसी कोई चीज होती नहीं लाइफ के अंदर। उसके पीछे बहुत सारा हार्डवर्क होता है, बहुत सारी प्लानिंग होती है, बहुत सारी डेडिकेशन होती है, उसके सबसे ऊपर आपका पैशन, आप अपने आप को कितना इन्वॉल्व कर सकते हैं उस चीज को अचीव करने में, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। लाइफ के अंदर सक्सेस मिलेगी, सबको मिलेगी, ऐसा नहीं है कोई सक्सेसफुल नहीं होता, हर एक की सक्सेस की डेफिनेशन अलग अलग है। बस सक्सेस जो है बेसिकली एक माइंडसेट है आपका, जो आपको पीस ऑफ माइंड देता है, ओके मैंने ये लेवल सोचा था, आई हैव रीच्ड दैट लेवल, दैट इज सक्सेस। कोई कहता है जी मुझे 500 करोड़ कमाना है, उसके बाद मेरा सक्सेस लेवल आता है, तो उसका माइंडसेट सेट है, उसको 4 करोड़ भी मिलेंगे, 5 करोड़ भी मिलेंगे, तो उसका माइंडसेट सेट है मुझे 500 करोड़ पे सक्सेस मिलेगी। एक कहता है जी मेरे पास घर होना चाहिए, खाने को अच्छा होना चाहिए, बच्चे अच्छे होने चाहिए, उसके लिए वो सक्सेस की डेफिनेशन वहां है। तो यू हैव टू जस्टिफाई योरसेल्फ कि मेरी सक्सेस की डेफिनेशन क्या है, मैं कहाँ जाके संतुष्ट हो सकता हूँ। एक संतुष्ट एक ऐसा वर्ड है जो लाइफ के अंदर कभी किसी को नहीं मिला। आज आप एक स्टेज पे पहुंचोगे, अगली स्टेज पे फिर कहेंगे नहीं मेरे लिए सक्सेस की डेफिनेशन चेंज हो गई है। लेट्स सपोज यू सेट अ पैरामीटर कि आज मेरे लिए सक्सेस की डेफिनेशन ये है, जब आप उस लेवल पे पहुंच जाओगे तो आप कहोगे नहीं मेरे लिए सक्सेस की डेफिनेशन कुछ और है, मुझे ये और चाहिए। ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है, हमारे पास जो होता है हम उस पर संतुष्ट कभी नहीं होते। हम उस पर संतुष्ट कब होते हैं जब हम अपने से नीचे वाले को देखते हैं, पर अब हम अपने से नीचे वाले को कभी नहीं देखना चाहते, हम हमेशा अपने गोल सेट हाई रखते हैं। हम ये तो देखते हैं मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास पहनने को, हम कभी ये नहीं सोचते वो आदमी सड़क पे पैदल चल रहा है, वो जो चुगने वाले होते हैं, जो कबाड़ चुगते हैं, अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, हम उससे कंपेयर करके देखें ना तो हम सक्सेसफुल हैं। तो इट्स अगेन अ माइंडसेट कि हमारे लिए सक्सेस की डेफिनेशन क्या है और विद रिस्पेक्ट टू होम। एक सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है लाइफ का कि हमको ये डिफाइन करें कि सक्सेस कहाँ तक है, क्या सक्सेस है। एंटरप्रेन्योर में सक्सेस जैसी कोई डेफिनेशन नहीं होती। एंटरप्रेन्योर में सिर्फ एक ही चीज होती है, आप कहाँ तक ग्रो करना चाहते हैं, व्हाट इज योर लेवल ऑफ ग्रोथ। हर साल अपने आप के लिए, अपने लिए 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट जरूर निकालें, सिर्फ ये राइट डाउन करने के लिए कि आपने इस साल क्या किया, व्हाट आर योर अचीवमेंट्स इन दिस ईयर। बिलीव मी जब आप ये करना शुरू कर देंगे, आपकी अचीवमेंट इस साल में क्या थी, तो अगले साल यू अगेन सेट अ पैरामीटर, अगेन सेट अ गोल, ओके इस साल मैंने ये किया है, अगले साल मैं ये करूंगा। और उस गोल को सिर्फ लिखने से काम नहीं चलेगा, उसको फॉलो करना पड़ता है। और फॉलो करने के लिए लास्ट में वही चीज आती है जहां से शुरू किया था, पैशन। आप कितने पैशनेट हैं उस गोल को अचीव करने के लिए, कितनी डेडिकेशन कर सकते हैं, कितना हार्डवर्क कर सकते हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। So with this, I would not like to take much of your time. I think so. मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया कर्नल मनीष के बाद. It doesn't make a relevance at all. But again, back to Dr. Dev, and thank you everyone for joining today. Dr. Dev. No, truly, it's fantastic because there's a one experience from the I think Dr. army, Dev, you're and mute. I think I okay now. Yeah. 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 So we got a one experience from army, make a discipline, and another implementation of the features or function of entrepreneur. And if some of the students want to visit the industry, the care industry, then they are most welcome. Definitely one day I will take you there, but you must make some presentation and all. And I request to Manish, Colonel Manish also, then our student want to visit that their industry and they can make their effective presentation for you. So those who are interested, not only a visit, but after the visit, they must make some PPT slide, analytical views, then which we will carry the live people with us. So here, thank you very much to both of the, anyone want to speak? Yes, I know Vikas Suryavanshi. You want to say something because you making a very so many things in chat, but we love to listen to you, Vikas. And after that, Mamta Shah, she's an MBA student. She will give a vote of thanks. Yes, Vikas. Harshita.
Thank you, sir. हाँ विकास बताइए आप। Sir, first of all, I would like to congratulate and thank you to take me a golden opportunity. Sir, I would ask one question that everyone talk about the politicians and everyone talk about everything, that no one talk about the armies. What army persons and their families are survival. They never asked, they never thought what the situation of the army person. And there the politicians and everyone is talking that कि आज तो ये हुआ, आज तो ये हुआ, आज यहाँ ये हुआ. That no one talking about the what the army persons and the families are survival and the army persons on the borders and the individuals and the failure. When I was talk about the failure is nothing. Failure is just when you able to maintain your ability, that no one knows her ability and her mental health. It is a very different thing of a failure. That failure is nothing, just a case of mental issues. When you able to compare, when you able to improve your mental health and mental abilities, then you find that failure is nothing. And an entrepreneur should know that the failure is nothing. And I would ask the question from the lieutenant sir that what they know there कि उनको क्या लगता है कि हाँ एक पर्सन में क्या क्या नीड होनी चाहिए कि उसको हाँ ये बनना चाहिए कि एंटरप्रेन्योर में ये होना चाहिए. मुझे पता है कि आर्मी पर्सन और एंटरप्रेन्योर में बहुत कुछ चीज़ें सिमिलर हैं, लेकिन जो लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं वो एक आर्मी पर्सन ज़्यादा अच्छे से समझ सकता है. डेफिनेटली विकास, बड़ा अच्छा आपने सवाल पूछा कि एक एंटरप्रेन्योर के अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए. सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एक जो एंटरप्रेन्योर होता है वो एक जॉब क्रिएटर होता है, वो जॉब हंटर नहीं होता. मतलब आप जो है जॉब देने वाले बन जाते हो, जॉब क्रिएटर बन जाते हो. तो फर्स्टली मैंने हर एंटरप्रेन्योर के अंदर जो एक सबसे बड़ी क्वालिटी नोट की है वो है एंथुजियाज्म. उनके Yes. अंदर मैंने एक किस्म का जोश जो है वो देखा है. Yes, sir. क्योंकि एक स्टार्टअप को स्क्रैच से शुरू करके एक हाइट पे ले जाने के लिए दैट काइंड ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड. सेकेंडली, आपकी बिजनेस की और मार्केट की समझ अच्छी होनी चाहिए. देखिए इस वक्त कोविड-19 की सिचुएशन के अंदर भी कुछ ऐसे बिजनेस और वर्टिकल्स हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं. Yes, sir. फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर ने इतने डेकेड्स में इतना अच्छा नहीं किया होगा बिजनेस जितना वो इस वक्त कोविड के अंदर कर रही है. Yes, yes. तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कोविड-19 की सिचुएशन में अगर मैं एज अ एंटरप्रेन्योर कुछ करना चाहता हूँ तो मुझे कौन से सेक्टर के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट और अपनी एनर्जीज को इस्तेमाल करना होगा. अगर यहीं पे मिसमैच हो गया, एक ऐसा माहौल है इस वक्त जहाँ दुकानें बंद हैं क्योंकि कर्फ्यू लगे हुए हैं, लोग क्राउडेड जगह पे जाना नहीं चाहते, उसके बाद भी बड़े सारे बिजनेसेस बहुत अच्छे से चल रहे हैं ना. लाइक Zoom has become one of the top grossing companies of the world just because they are offering something जो कि इस वक्त लोगों को चाहिए. सो हमें इस वक्त आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. आपको पता है मैं स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना चाहूँगा कि इंडिया को कोविड जब शुरू हुआ था उस वक्त बाहर से ये प्रोटेक्टिव किट बनवानी पड़ रही थी और Yes, हमको इंपोर्ट करनी पड़ रही थी प्रोटेक्टिव किट्स, जिनको पीपीई बोलते हैं. हमारे ना डॉक्टर्स के पास थी ना नर्सिस के पास थी. yes, yes. आज इंडिया के अंदर प्रोटेक्टिव पीपीई की एक अपनी इंडस्ट्री बन गई है जिसकी वैल्यू है 7,000 करोड़ रुपए. Yes, yes, sir. क्योंकि हमने अपने आसपास की सिचुएशन को समझा और हमने ये समझा कि इस बदलती हुई दुनिया के अंदर हमें अपनी सोच को कैसे बदलना है. आज इंडिया को पीपीई किट बाहर से इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है. Yes. और जितने भी एंटरप्रेन्योर्स ने छोटे छोटे सिलाई केंद्र थे जो कि ये मतलब ड्रेसेस बनाते थे और रुमाल बनाते थे, आज सब वो पीपीई किट बना रहे हैं. Yes, sir. सिमिलरली वो सब एंटरप्रेन्योर जो इस वक्त ऑक्सीजन प्लांट्स लगाएंगे,
वो कम्युनिटी की सेवा तो करेंगे ही, लेकिन वो इस वक्त लोगों को उनके जीवन को भी बचाने में हेल्प कर सकते हैं। तो हमें ये देखना है कि किसी भी समय बिजनेस करने की सिचुएशन क्या है, उसमें किस प्रोडक्ट की जरूरत है और किसको आगे लेके चलना है। तो आपकी बिजनेस और मार्केट की, जैसे कहते हैं नोइंग द पल्स ऑफ द मार्केट, वो Yes. होना बहुत जरूरी। रिस्क टेकिंग एबिलिटी के बारे में हमने बात की, एंथुजियाज्म के बारे में बात की, लेकिन उसके बाद मैं इथिक्स की बात जरूर करूंगा। अपने अंदर जो एक कैरेक्टर है उसको जरूर बचा के रखिए। जो बिजनेस है वो इथिकल स्टैंडर्ड्स के साथ कीजिए। सोचिए क्या गलत है क्या सही है और सच का साथ दीजिए। और जैसा कि हम कहते आ रहे हैं कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें शुरू में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, इसमें परसिवेरेंस की जरूरत है, कॉन्टिन्यूड एफर्ट की जरूरत है। और ऐसा हो नहीं सकता, मेरा खुद का एक्सपीरियंस ऐसा कहता है कि हम ये सब चीजें करें सक्सेस जरूर मिलती है, बस थोड़ा टाइम अंधेरे में चलना पड़ता है, लेकिन रोशनी थोड़ा सा आगे मिलेगी आपको और आप जरूर सक्सेसफुल। सर वो बात आपकी सही है, लेकिन जो एंटरप्रेन्योर होता है उसको हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क भी जरूरी होता है। जी, तो क्योंकि गुड स्मार्ट वर्क के विकास। लिए मैंने बिना स्मार्ट ये वर्क जो के चेंज, कर्नल साहब 2-3 क्वेश्चन हो रहे हैं जरा Q&A में, आई थिंक हाँ उन्हें भी ले बताइए। लिया जाए। Varun Gupta is asking how your leadership skill or decision making during your posting in army helped you in a corporate world. हाँ देखिए, ये बड़ी Q&A एक में आप आपने इंटरेस्टिंग, देखिए। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आपने पूछा। मैंने आर्मी छोड़ने के बाद अपनी एमबीए की थी एमडीआई गुड़गांव से। उसके बाद मैंने रोल्टा इंडिया ज्वाइन किया। ये एक मल्टीनेशनल आईटी कंपनी है जो कि मुंबई में है। मैं अंधेरी में रहता था, 6 साल रहा वहाँ। तो मेरे पास एक ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि जो मैंने आर्मी में लीडरशिप सीखी है, क्या मैं उसको कारपोरेट वर्ल्ड में लेके जाना चाहिए मुझे, या मुझे अपने आप को चेंज करना चाहिए। क्योंकि वहाँ पे सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स थे और मैंने सारी जिंदगी सोल्जर्स के साथ डील किया था। तो आप लोगों को ये जान के ताज्जुब होगा कि मुझे बिल्कुल भी चेंज नहीं करना पड़ा। जो लीडरशिप प्रिंसिपल्स मैं आर्मी में प्रैक्टिस करता था वही मैंने कारपोरेट में जाके किए, और मैंने देखा कि वो बिल्कुल टेलर मेड थे वहाँ के एनवायरनमेंट के लिए। और लोगों ने कहा कि हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला, मैंने भी बहुत कुछ सीखा, क्योंकि मुझे बेसिकली अपना टेक्निकल नो हाउ बढ़ाना था। लेकिन एक आर्मी के अंदर जैसे एक प्रिंसिपल होता है कि हम अपनी जो टीम्स हैं उनको लीड बाय एग्जांपल करते हैं। अगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी टीम आज 9 बजे तक रात को काम करेगी, तो मैं भी वहीं 9 बजे तक बैठता हूँ। ऐसा नहीं होता कि उनको ऑर्डर देके मैं घर चला जाऊँ। तो एक जो लीड बाय एग्जांपल वाली बात है, ये मेरे ख्याल लीडरशिप का एक बहुत ही बड़ा सिद्धांत है। सेकेंडली, एक आपको छोटी सी कहानी बताना चाहूँगा। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने जब अपना पहला ये रॉकेट इंजन बनाया था, तो 1971 में उसकी जो पहली उड़ान थी वो फेल हो गई थी। पूरी दुनिया की नजरें थी हमारे ऊपर, देश के लिए बड़ा प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट था SLV प्रोजेक्ट, और जो पहली जो उसकी टेक ऑफ था वो फेल हो गया था। और शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो उनके जो मेंटर थे विक्रम साराभाई थे, उन्होंने कलाम साहब को बुलाया, बड़े डिजेक्टेड थे वो, और उनसे कहा कि क्योंकि आज शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस है और हम फेल हो गए हैं, तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैं लूंगा, तुम बैठ के देखना। तो कलाम साहब ने कहा कि सर ऐसा कैसे हो सकता है कि फेलियर की जो फेल तो मेरी वजह से हुआ नहीं, आप क्यों वो सारा का सारा ब्लेम लेंगे। उन्होंने कहा वो तुम्हें बाद में समझ आएगा। और वो शाम को कॉन्फ्रेंस हुई और वो पूरे के पूरे प्रेस के क्वेश्चन के, जी आपने तो देश का पैसा डुबा दिया और आपके पास टेक्निकल नॉलेज नहीं थी, वो विक्रम साराभाई ने अपने ऊपर लिए। 1 साल और काम करने के बाद डॉक्टर कलाम ने SLV की जो नेक्स्ट फ्लाइट नेक्स्ट ईयर में हुई वो सक्सेसफुल थी, और वो टेक्नोलॉजी आज भी इंडिया के क्रायोजेनिक इंजन्स के अंदर इस्तेमाल हो रही है। उस शाम को एक कॉन्फ्रेंस फिर थी, विक्रम साराभाई ने उनको बताया क्योंकि हम सक्सेसफुल हो गए, अब ये कॉन्फ्रेंस तुम लोगे। ये है लीडरशिप, कि जब वो फेल हो रहे थे तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस विक्रम साराभाई ने ली, लेकिन जब वो सक्सेसफुल हो रहे थे तो वो कॉन्फ्रेंस उन्होंने कहा कि डॉक्टर कलाम लेंगे। हमें अपने जूनियर लीडर्स को इस तरह से नरिश करना है, इस तरह से उनको अपने साथ लेके चलना है, जूनियर लीडरशिप को इस तरह से कल्टीवेट करना है, ताकि वो आपको ट्रस्ट कर सके और आपको विश्वास कर सके। आई थिंक ये लीडरशिप की कुछ चीजें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता So wonderful, wonderful. So I think the next
is everyone have their schedule for lunch, especially for lunch. I'm talking happy lunch. And after that, they have so many other classes. So Okay. I wish to invite 21st century Mehmet learner Mamta Shah for vote of thanks. Mamta. A very good afternoon, everyone over here. Honorable guest, Lieutenant Colonel Manish Sharma sir, Gaurav Jain sir, and our Dean sir, Dr. Devendra Arora, and all the participants. I am Mamta Shah, a management learner of 21st Century Management Education. And it's an honor for me to give a vote of thanks to our guest. And on behalf of entire MIT Business School, I extend my hearty vote of thanks to all the participants for their presence. And thank you so much, Lieutenant Colonel Manish Sharma sir and Gaurav Jain sir, for to take out time from your busy schedule and make this webinar a very informative one. Thank you so much for inspiring us and encouraging us and motivating us with your experience and sharing your words. And thank you so much for this webinar. Thank you, Mamta. Thank you so much. In fact, it has been my pleasure also. And MIT is a institute जिसके साथ सभी लोग एसोसिएट करना चाहते हैं बिकॉज एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स और इंडस्ट्री के बीच की जो रिलेशनशिप है उसको इंडिया में एक डेफिनेट एज पे ले जाने की ज़रूरत है ताकि हम एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के चल सकें। और मैंने चैट बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर भी डाल दिया है, आप में से किसी के और भी कुछ सवाल हो तो मैं ज़रूर उनको लेना चाहूँगा। Thank you, Devendra ji. Thank you, Gaurav, and thank you, Mamta, for being such wonderful audiences. Thank you so much. Thank you so much, Gaurav ji. We wish to end this webinar with your closing remark. I would like to thank Dr. Dev and Colonel Manish for organizing such a wonderful event for the young audience, or I would say the entrepreneur of 21st century. And probably they'll take some keynotes out of it, and soon we'll have a young generation of managers and entrepreneurs from MIT Business School. एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि डॉक्टर देव ने बहुत बार कही, एक अच्छा ह्यूमन बीइंग ही अच्छा सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकता है। इस चीज को आप कभी ना भूलें। आप सोचे कि मैं चीटिंग करके, मैं फ्रॉड करके कुछ आगे बढ़ जाऊंगा, तो वो एक शॉर्ट टर्म अचीवमेंट है आपकी लाइफ की। यू हैव टू बी एथिकल, आपकी एथिक्स होनी चाहिए, आपकी वैल्यूज होनी चाहिए। कोई भी आप बड़ा ग्रुप देख लें, उसके पास एक एथिक्स होते हैं, एक विजन होता है, एक काम करने का एक पैटर्न होता है कि ये चीज सही है हमारे लिए और ये चीज गलत है। तो उसको जज करना ये आपकी जिम्मेवारी है। ये आपके अंदर आपके माँ बाप ने, आपके स्कूल्स ने, आपकी सोसाइटी ने आपको इतनी क्षमता जरूर दी है कि आप ये समझ सकें, ये जान सकें कि क्या सही है लाइफ में और क्या गलत है। इसका डिसीजन आपको खुद लेना पड़ेगा। ये आपको अब तक सारे स्कूल, सारे कॉलेजेस, आपके दोस्त, आपके माता पिता, आपके नियर डियर्स सब समझा चुके हैं। अब आप इस एज में हैं कि आप खुद जज कर सकें कि क्या सही है लाइफ में, क्या गलत है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अपनी ह्यूमन वैल्यूज को ना भूलें। आप कभी जिंदगी में ये मत भूलें कि मैं भी एक इंसान हूँ और जिसके साथ मैं अच्छा कर रहा हूँ वो भी एक इंसान है, जिसके साथ मैं बुरा कर रहा हूँ वो भी एक इंसान है। आप हमेशा ऐसे सोच के चलेंगे तो आई थिंक सो सक्सेस आपको जरूर मिलेगी। टीम भी आपके साथ काम करके चलेगी। ऐसा नहीं है कि लोग एक अच्छे आदमी का साथ जल्दी छोड़ देते हैं, ऐसा कभी नहीं होता। सो विद दिस आई वुड लाइक टू give my best wishes to all the students and the management learners, and special thanks to Colonel Manish for giving us an opportunity to share the brand with him. I think so a soldier is always a soldier. I think so जो वो रहता है सारी जिंदगी सोल्जर बन के रहता है। ऐसा कभी नहीं होता कि वो आज सोल्जर है और कल वो एक एंटरप्रेन्योर हो जाएगा। वो जो है अपनी लाइफ को कैसे यूज करना है, कहाँ यूज करना है इफेक्टिवली, एक सोल्जर से अच्छा कोई नहीं पहचान सकता। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज सोल्जर के अंदर होती है वो है डिसिप्लिन। सारी जिंदगी वो डिसिप्लिन उसको सक्सेस दिलवाता है। बी ऑन टाइम, टू फुलफिल ऑल द कमिटमेंट, बी अ लीडर। लीडर की सबसे अच्छी पहचान होती है वो ब्लंट लेने के लिए हमेशा सबसे आगे होता है। जैसा अभी कल मनीष ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की स्टोरी का एग्जांपल दिया, दैट वाज वेरी वेल सेड। ये एक ट्रू लीडर की पहचान है। जब फेलियर हुआ तो साराजी भाई ने ब्लंट लिया, जब सक्सेस हुई
तो अपने जूनियर को आगे किया। ये मोटिवेशन भी था एक जूनियर के लिए, एट द सेम टाइम उसको ये भी पता चला कि लीडरशिप क्वालिटी क्या होती है। अब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के लिए दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट थे। जब डॉक्टर सारा भाई ने अपने ऊपर सारा ब्लंट ले लिया तो उनके ऊपर एक ये बर्डन भी आ गया कि इस बात को मुझे गलत प्रूव करना है। ये आदमी जस्टिफाइड था। आपने स्टोरी तो सुनी, उसका मॉरल समझे लास्ट में। आप देखिए उनके लिए कितना मोटिवेटिंग था कि डॉक्टर सारा भाई ने सारा ब्लंट ले लिया अपने ऊपर। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आराम से बैठ नहीं सकते थे until he make a success। तो ये एक लर्निंग थी। अगर वो उस फेलियर से पीछे भाग जाते तो डाउनफॉल था। यही मैं आपको बता रहा था, फेलियर से सीखना सीखें। So with this, I would like not take much of your time and thank you, Dr. Devaroda and MIT Business School, and special thanks to Colonel Manish and the entire audience who've been joined in today. Have a great day. Bye bye. Thank you Thank you, so Gaurav. much. Thank you so much. Thank you, everyone. Thank you so much. Thank you everyone. Thank you.